नमस्कार दोस्तों, एस इंजीनियरिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के करंट अफेयर सीरीज में हम डिस्कस करेंगे रीसेंट डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स एंड सम इम्पोर्टेंट डेट्स। तो आइए शुरुआत करते हैं विद आवर फर्स्ट करंट अफेयर। IIT मद्रास द्वारा एक रोबोट डेवलप हुआ है जिसका नाम है होमोसेप दैट कैन क्लीन द सेप्टिक टैंक विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। HOMOSEP stands for Homogenizer of Septic Tank, and it is an automatic robot that can be operated by outside and does not require anyone to enter in septic tank. इस रोबोट को डेवलप करने का मेन उद्देश्य था to eliminate the inhuman practice of manual scavenging. Septic tank is a very poisonous and dangerous environment for human being. It consists of semi-solid and semi-fluid human excreta, and in human intervention of cleaning septic tank, hundreds of people died across the country. So this robot is solution to this problem. Recently, 10 units of this robot is deployed in Tamil Nadu, and later it will be adopted in Gujarat and Maharashtra. Now let's move to the next slide. अब हम बात करेंगे साउथ कोरिया हैज़ रिसेंटली सक्सेसफुली लॉन्च्ड इट फर्स्ट homegrown space rocket and put it into the orbit, becoming the 7th nation after US, France, China, Japan and India. It is a 200-ton space rocket named as the Nuri KSLV-2 Korean satellite launch vehicle rocket. It is launched from Naro Space Center. It is the second attempt by South Korea of launching the space rocket, the Nuri, and it is prepared at the cost of $1.5 billion. Now let's move to the next slide. Indian Railways द्वारा फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन को लॉन्च किया गया है अंडर भारत गौरव स्कीम। भारत गौरव स्कीम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 2021 नवंबर में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसका मेन उद्देश्य है टू प्रमोट द टूरिज्म ऑफ इंडिया। इस स्कीम के माध्यम से पीपल फ्रॉम इंडिया एंड फॉरेन कंट्रीज can explore the India's rich culture, heritage and historical places. When we talk about the trains in Indian Railways, there are two categories of Indian Railways train, that is passenger based train and goods based train. And these recent trains that are introduced under Bharat Gaurav schemes are theme based train which are developed to promote tourism sector. इस स्कीम के अंतर्गत डेवलप की गई ट्रेन्स को प्राइवेट ऑपरेटर्स द्वारा रन किया जाएगा, एंड दे आर गोइंग टू बी द थीम बेस्ड सर्किट, एंड द फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन दैट आर गोइंग टू बी रन is operated by a firm named South Star Rail. Southern Railway is the first zone to get registered service provider under Bharat Gaurav scheme. The train is going to run from Coimbatore in Tamil Nadu for Sainagar in Maharashtra. Under this scheme, private players can lease the train for 2 years from Indian Railways, and world-class facilities will be provided in these trains like radio jockey, one emergency doctor and other luxurious facilities. Now let's move to the next slide. अब हम बात करेंगे गाइया मिशन के बारे में, जिसको यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा 2013 में लॉन्च किया गया था। Recently they have created the map of galaxy. The recent data has revealed the phenomena of star quakes. Star quakes is similar to tsunami-like earthquake which results in change of shape of stars. Under this mission, almost 1.8 billion stars has been covered, and the data has revealed largest chemical map of entire Milky Way galaxy, showing the DNA of millions of stars. This mission will continue till 2025. Now let's move to the next slide. अब हम बात करेंगे इंडिया का पहला सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन रेलवे स्टेशन, जो कि रिसेंटली प्रधानमंत्री द्वारा इनॉग्रेट हुआ है इन बैंगलोर कर्नाटका ऑन 28 जून 2022, विच इज़ नेम्ड एज एम विश्वेश्वराया टर्मिनल। इस रेलवे टर्मिनल को बनाने में टोटल कॉस्ट इनकर्ड हुई है 315 करोड़, एंड दिस टर्मिनल हैज़ ऑल्सो सोलर रूफ टॉप पैनल्स एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग मैकेनिज्म. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब हम बात करेंगे निपुण प्रोजेक्ट के बारे में, जिसको मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हरदीप सिंह पुरी द्वारा लॉन्च किया गया था. निपुण स्टैंड्स फॉर नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अपस्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स.
Under this scheme, skill training will be provided to construction workers, around 1 lakh construction workers. Under this scheme, the work opportunity will be provided to construction workers nationally and internationally as well. इस स्कीम को 3 पार्ट्स में इम्प्लीमेंट किया जाएगा एंड दिस स्कीम इज़ द फ्लैगशिप स्कीम ऑफ दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, दैट इज़ DAY-NULP. This scheme will be implemented by National Skill Development Corporation, a nodal agency which comes under Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. Now let's move to the next slide. अब हम बात करेंगे MMY के बारे में, दैट इज़ मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना. इट इज़ लॉन्च बाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन वडोदरा, गुजरात. ये एक न्यूट्रिशन स्कीम है जिसके अंतर्गत प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स एंड न्यूबॉर्न बेबीज़ कवर है, जिसके अंतर्गत 1000 डेज तक फाइनेंशियल असिस्टेंट एंड न्यूट्रिशन फूड प्रोवाइड कराया जाएगा टू द बेनिफिशरीज. अंडर दिस स्कीम एवरी मंथ nutrition kit will be provided to the identified beneficiaries, which include 2 kg of chickpeas, 1 kg of tur dal and 1 kg of edible oil, and this will be given at free of cost from Anganwadi centers. This scheme is launched with a total cost of 800 crores. Now let's move to the next slide and अब हम बात करेंगे important dates के बारे में. सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस के बारे में. इस दिन को 16 जून को ग्लोबली सेलिब्रेट किया जाता है ऑल अराउंड द वर्ल्ड. इस दिन को इन फरवरी 2015 यूनानिमसली प्रोक्लेम किया गया था बाय इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द थीम फॉर 2022. इस साल भी यूनाइटेड नेशन द्वारा लास्ट ईयर की थीम को कंटिन्यू किया गया है, दैट इज़ रिकवरी एंड रेजिलियंस थ्रू डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन्स. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. इंटरनेशनल डे ऑफ एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस. इस दिन को ऑल अराउंड द वर्ल्ड 19 जून को सेलिब्रेट किया जाता है एंड इन 2015 इसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा अडॉप्ट किया गया था. एंड दिस ईयर थीम इज़ Prevention as Protection, Enhancing Structural and Operational Prevention of Conflict-Related Sexual Violence. Now let's move to the next slide. अब हम बात करेंगे वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे के बारे में. इस डे को 22 जून को सेलिब्रेट किया जाता है एंड थीम फॉर 2022 इज़ टाइम इज़ नाउ. इस दिन को 2017 में अडॉप्ट किया गया था. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. इंटरनेशनल विडोज़ डे. इस दिन को 23 जून को सेलिब्रेट किया जाता है एंड थीम फॉर दिस ईयर इज़ सस्टेनेबल सॉल्यूशंस फॉर विडोज़ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. इस दिन को 2011 से सेलिब्रेट किया जाता है ऑल अराउंड द ग्लोब. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्लाइड. अब हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे. इस दिन को भी 23 जून को सेलिब्रेट किया जाता है ऑल अराउंड द वर्ल्ड एंड इस दिन को 20 दिसंबर 2002 में जनरल असेंबली द्वारा अडॉप्ट किया गया था. एंड द थीम फॉर दिस ईयर इज़ बिल्डिंग बैक बेटर फ्रॉम कोविड-19, एनहेंसिंग इनोवेटिव पार्टनरशिप्स टू मीट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. इंटरनेशनल ओलंपिक डे. इस दिन को भी 23 जून को सेलिब्रेट किया जाता है एंड फर्स्ट ओलंपिक डे was observed in 1948. This day is also recognized as founding day of International Olympic Committee. And the theme for this year is Together for a Peaceful World. That's all for today's class. अगर आप इस क्लास का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर रेगुलर अपडेट ऑन लेटेस्ट करंट अफेयर्स. डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. अगर आप गेट ESE या PSUs की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड आप हमारे एस इंजीनियरिंग एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे रीसेंट कोर्सेज को व्यू कर सकते हैं ऑन आवर ऑफिशियल वेबसाइट एस इंजीनियरिंग एकेडमी, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाके एस ऑनलाइन ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं. एस ऑनलाइन ऐप पर जाकर आप हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज़ के डेमो वीडियोज़ व्यू कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग.